بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو صوفی وائس چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اصحاب کہف کون ہیں اور ان کا کیا واقعہ ہے؟ علماء تفسیر و مورخین واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں بادشاہ بڑا جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے بڑے شریف اور معزز ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے۔ انہوں نے جب وہاں شرک و بت پرستی کا تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لگاؤ اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں صرف نام خدا پر ہونی چاہیے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے، پھر تیسرے، پھر چوتھے بھی آ گئے۔ غرض ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں جان پہچان نہ تھی، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ سب خاموش تھے۔ ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں اپنی اندر کی بات کو بتا دوں تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اسی طرح قوم کے اس مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر ایک دانا اور جری نوجوان نے کہا، دوستو، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ ہم لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تم ان سے یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی، بات یہی ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، جبکہ آسمان اور زمین کا اور میرا اور تمہارا خالق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال مواحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیرخواہ بن گئے۔ آپس میں اتفاق ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم اور مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار کو بھی اس کی دعوت دی۔ بادشاہ بہت بگڑا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو میں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور بھی مضبوط ہو گئے، ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے قوم
देश, रिश्ते, बॉम्बे को छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया और एक दिन मौका पाकर यहाँ से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ में एक गार में पनाह गुंजी हुए। वहाँ वो सो गए और 300 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में रहे। बादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं, तो उसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वो इसमें मर कर रह जाएं और वो उनकी कब्र हो जाए। यही उनकी सज़ा है। उमाले हुकूमत में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो नेक आदमी था। उसने उन असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाक़या रंग की तरह तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। यह भी बयान किया गया है कि इस तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में महफूज करा दी गई। कुछ अरसे के बाद ये जालिम बादशाह हलाक हुआ। ज़माने गुज़रे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक कि एक बादशाह फर्माबरदार हुआ। फिर मुल्क में फ़िरका बंदी पैदा हुई और बाज़ मरने के बाद उठने और क़यामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और उसने गिरिया वजारी से बारगाह इलाही में दुआ की, या रब, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मुर्दे के उठने और क़यामत का यकीन हासिल हो। इसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते इसी गार को तय किया और दीवार गिरा दी। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाला भाग गया। असहाब कहफ अल्लाह के हुक्म से खुशहाल उठे, चेहरे शगुफ्ता, तबीयतें खुश और ज़िंदगी में तरोताज़गी मौजूद। एक ने दूसरे को सलाम किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। फारिग होकर एक से कहा, आप जाइए और बाज़ार से कुछ खाने को भी लाइए और ये भी खबर लाइए कि दक्यानूस बादशाह का हमारे बारे में क्या इरादा है। वो बाज़ार गए और शहर पनाह के दरवाज़े पर इस्लामी अलामत देखी, नए नए लोग पाए। उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की कसम खाते सुना। तअज्जुब हुआ कि ये क्या मामला है। कल तो कोई ईमान ज़ाहिर नहीं कर सकता था और आज इस्लामी अलामतें शहर पनाह पर जारी हैं। लोग बेखौफ हज़रत के नाम की कस्में खाते हैं। उन्हें इन बातों से हैरत इसलिए हो रही थी कि वो अपने नज़दीक यही समझे हुए थे कि हमें यहाँ पहुँचे एक आधा दिन गुज़रा है। हालांकि इस दौरान ज़माने गुज़र चुके थे, सदियाँ बीत गई थी। फिर रोटी वाले की दुकान पर गए खाना खरीदने के लिए। उसको दक्यानूसी सिक्के का 1 रुपया दिया, जिसका चलन सदियों से मौकूफ़ हो गया था और उसका देखने वाला भी बाकी न रहा था। दुकानदार ने उस सिक्के को देखकर सख्त ताज्जुब किया और उसे अपने पड़ोसी को दिया और कहा, मियाँ देखना, ये सिक्का कब का है और किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया। दूसरे से किसी और ने देखने को मांग लिया। अलगर्ज वहाँ एक तमाशा बन गया। बाज़ार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना ख़जाना उनके हाथ लग गया। उन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए। वो नेक आदमी था। उसने भी उनसे पूछा कि ख़जाना कहाँ है। उन्होंने कहा, ख़जाना कहीं नहीं है, ये रुपया हमारा अपना है। हाकिम ने कहा, ये बात किसी तरह
यकीन के काबिल नहीं। इसमें जो सन मौजूद है वो 300 बरस पहले का है और आप नौजवान हैं और हम लोग बूढ़े हैं। हमने तो कभी ये सिक्का देखा नहीं। आपने फरमाया कि जो मैं पूछूं ठीक ठीक बताओ तो मसला हल हो जाएगा। ये बताओ कि दकियानूस बादशाह किस हाल ख्याल में है। हाकिम ने कहा, आज रूहे ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। सैकड़ों बरस हुए जब एक बेईमान बादशाह इस नाम का गुज़रा है। आपने फरमाया, कल ही तो हम उसके खौफ से जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार में पनाह लिए हैं। चलो मैं उन्हें तुमसे मिला दूं। हाकिम शहर के अमाइद और भीड़ उनके साथ सरेगार पहुँचे। उधर असहाब काफ अपने साथी के इंतज़ार में थे। बहुत से लोगों की आवाज़ सुनकर समझा कि साथी पकड़ा गया और दकियानूसी फौज हमारी तलाश में आ रही है। अल्लाह के हम्द और शुक्र बजा लाने लगे। इतने में ये लोग पहुँचे और साथी ने सारा किस्सा सुनाया। इन हजरात ने समझ लिया कि हम अल्लाह के हुक्म से इतना तवील ज़माना सोए और अब इसलिए उठाए गए हैं कि लोगों के लिए बाद मौत ज़िंदा किए जाने की दलील और निशानी हो। हाकिम सरेगार पहुंचा तो उसने तांबे का संदूक देखा। उसको खोला तो तख्ती बरामद हुई। उसमें इन असहाब के नाम और उस कुत्ते का नाम लिखा हुआ था। ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गुंजी हुई। ये तख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ और लोग अल्लाह के हम्द व सना बजा लाए कि उसने ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता है। दोस्तों, असहाब काफ के नाम के साथ तख्ती पर जिस कुत्ते का नाम था, बाज़ लोग कहते हैं कि ये उन्हीं असहाब में से किसी एक का शिकारी कुत्ता पला हुआ था। एक कौल में ये भी है कि बादशाह के बावर्ची का ये कुत्ता था, क्योंकि वो भी उनके हम मसलक था और उनके साथ हिजरत में था। हिजरत के वक्त ही उनका ये कुत्ता उनके पीछे हो गया था। हाकिम ने अपने बादशाह को इत्तला दी। वो उमरा और वज़ीरों को लेकर हाजिर हुआ और सजदा शुक्र इलाही बजा लाया कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। असहाब काफ ने बादशाह से मुआनका किया और फरमाया कि हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह तेरी और तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन और इंसान के शर से बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि वो हजरात अपने ख्वाबगाहों में वापस होकर मशरूफ़ ख्वाब हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें वफ़ात दी। बादशाह ने सरेगार मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और खुशी का दिन तय किया कि हर साल लोग ईद की तरह वहाँ आया करें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।